to instill the genetic material into the host cell. This is how it goes through the transmission happens through the eyes. Yeah, Eleni, that was really impressive. I think we've already overrun our time. Like, I think it was just a very interesting session. So thank you all for your patience for staying on. And I think we'll move on to the question answer session. Which questions I hear in the chat, this thing. But if you come up with, I don't know if everyone's familiar with how to use the chat thing, and maybe that's the reason why there aren't more questions. Like, if you still want to ask some more questions, I mean, after we finish with these, we'll give everyone a chance to maybe you can voice up your questions as well. So our first question, that somebody asked a question saying, people are making hand sanitizers at home without alcohol. So how effective are these hand sanitizers? Habib, would you like to respond to that? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Yeah. So hand sanitizers should have a minimum of 70% of alcohol in it to be effective. So if any hand sanitizer is made which has less than 70% alcohol, it will not be effective. And the alcohol has to dry on the hand rather than be wiped off with a towel or a tissue. So if you are making any hand sanitizer at home, it should have 70% alcohol, and I am sure you can't make hand sanitizer, at least in Saudi Arabia, with alcohol. Right. No, that's really helpful. And I think one point that people generally overlook is that soap is a really good disinfectant against the virus. I mean, you have to wash your hands properly with soap. Leave the soap on for at least 20 seconds to half a minute. But it works even better than hand sanitizers, because it actually cleans your hand. It takes away the layer of dirt on your hands. And what hand sanitizer will do is it will just kill the virus on the surface. But if there's dirt on your hand or some other things on your hand, the alcohol doesn't work after that layer. A soap will wash off the grease on your hair or on your hands and the dirt on your hand. So it doesn't have to be a hand sanitizer made out of alcohol. If it is, it has to be at least 70% alcohol, like everybody said. But you can do exactly the same with just soap and water, and that's equally effective. Okay, next question is, what is the contact time for infection? Is it, some people say, I mean, the question is that some people say you have to be exposed for 10 minutes. I think this is one of those WhatsApp messages that's going around that's causing confusion. So yeah. I don't know, Shamim, would you like to address this one, please? I can't, Shamim, you're still mute. I can't unmute you. So what the SEMA guideline, it should be. Shamim, आवाज नहीं आ रही, you're still mute. Okay, yeah. Yeah. What the guidelines say that you should be in contact with a person less than 1 meter and for more than 15 minutes. That should be close contact. Sorry, I think your voice broke up, Shamim. Can you repeat that, please? Close contact when you are in the contact with the COVID positive than 1 meter in contact and for more than 15 minutes, 15 minutes. Okay, I think his voice is breaking up. I think what he said was 15 minutes. Like, I think 15 minutes, yes. What's important to understand is that there is no simple answer to this question. There is no fixed amount of time that will result in infection. It's the amount of virus particles that enter your body. So it will depend on a lot of factors. So say you are close to say you're sitting next to a person who is infected. I mean, that is basically the gist of the question. So you're sitting next to a person who is infected and you're worried about how
how long you can sit there before you get infected. So whether or not you get infected will depend on, one, how severely infected that person is, how much virus he's actually shedding out. So how much virus is contained in his cough or his sneeze or the droplets that he's pushing out of his body. How close you are to that person, how long you spend with that person, what your immunity levels are. So there's a lot of factors that determine, rather than just putting a time limit on it. So someone with a very weak immune system sitting next to a very highly infective person, I mean, even a few seconds might be enough. For someone else with a really good immune system, sitting next to someone who's not shedding as much virus, I mean, you could sit there for very long and not get infected. So there's no easy answer to this question, but there's definitely no fixed time limit. So I don't know where that 10-minute or 15-minute thing comes from, but there is no fixed time limit to get infected. Next question. Contact tracing. Sorry, Shamim. It is help in contact tracing. If you are in contact with a person for 15 minutes, then you are considered as a close contact and you and you go into quarantine. Okay, that's a really important. That's a very, very good point. So I don't know if everyone was able to hear that. Like in Shamim, what she's saying was, if you were in contact with someone with a known patient of COVID-19 for more than 15 minutes, then you are considered as being vulnerable to infection. Okay, so when they trace contacts for everyone, okay, they try and find out who that infected person was in contact with. Anyone who spent more than 15 minutes will count as a contact. Next question. Is severity of the disease related to alcoholism? Habib bhai, maybe Shamim, one of you. Yes, chronic alcoholism leads to CLD, chronic liver diseases. So this is a comorbidity, and all comorbidities that are associated with COVID has got poor prognosis. So alcoholism is really the patient is alcoholic and carries poor prognosis. Okay. So, I mean, for the non-medical people here, comorbidities means some other disease. So any other disease that you have in your body increases your chances of getting a severe illness. So if you have, liver disease due to alcoholism, then that will become a factor in, the severity of the disease that you get. Anything you want to add, Habib bhai? Rightly said, as Shamim rightly said, can you hear me? जी Habib bhai. Yeah. जैसे शमीम साहब ने कहा सही बिल्कुल कि लिवर डिजीज अल्कोहल इटसेल्फ से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज किया है या हेपेटाइटिस के शिकार रहे हैं आप, तो आपके इम्यून लेवल डाउन हो जाएगा एंड दैट विल मेक यू मोर प्रोन टू डेवलप COVID-19 or for that matter any infection. That's what counts. Anything anyone else wants to add? Asar Saab, Farooq, anything you want to add to this? No? Okay, we'll move on to the next one then. Are asymptomatic patients carriers? I think what they mean is that I already put it in the presentation that अभी जो हमारे पास एविडेंस है उसके हिसाब से लोग जो हैं 2 दिन पहले सिम्टम्स आने के 2 दिन पहले से दे आर कंसिडर्ड इन्फेक्टिव और ये चलता है 7 से 12 दिन तक बाद तक, तो आप उसको 14 दिन मान लीजिए, तो एक 14 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि लोग इन्फेक्टिव होते हैं. दैट इज द एविडेंस दैट इज देयर और जो WHO मान रहा है इस वक्त. इट माइट चेंज बट दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ. पीरियड शुरू हो जाता है सिम्टम्स से आने से 2-3 दिन पहले. 2 दिन पहले ये कह रहे हैं, 1 to 2 days बिफोर. जी. तो
I think इसी this is the basis of the recommendation के मास्क सब लोग पहना करें, क्योंकि आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो. 80% of people will have an infection जो इतना माइल्ड होगा कि उनको हो सकता है एहसास ही ना हो कि इन्फेक्शन हुआ है. बिल्कुल. और जिन लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होगा भी, वो लोग भी सिम्टम्स आने के 2-3 दिन पहले से वो और लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज द बेसिस के मास्क सबको यूनिवर्सली मास्क अगर सब लोग पहने तो स्प्रेड उससे रुक सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन फ्लू एंड कोविड? आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन जो बहुत लोगों को वो है, और व्हाट्सएप पे हर तरह के उन्होंने मतलब ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. हाँ, तो यूके के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी पेशेंट फीवर और कॉफ के साथ अगर आ रहा है तो उसका स्वाब करते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए भी और कोविड के लिए भी. अगर स्वाब नेगेटिव है बाय RT-PCR तो इट इज कोविड नेगेटिव, तो उसको कॉमन फ्लू की तरह ट्रीट कर रहे हैं. लेकिन जो नहीं है और कोविड पॉजिटिव आ रहा है वो कोविड पॉजिटिव है. कोई ऐसा कोई जिसे कहते नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है जो ये बता दे, या कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो बता दे कि ये इसको कोविड है और इसको फ्लू हो रहा है, कॉमन फ्लू हो रहा है. एक अकेली चीज जो लोगों ने बताई है वो ये है कि बॉडी एक जो होता है कोविड में वो बहुत ज्यादा शदीद होता है, नॉट लाइक फ्लू. दैट्स द ओनली थिंग जो कि लोगों ने डिफरेंशिएट बताया जो जिनको दोनों हुआ है. सर यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया और की रिकमेंडेशन है कि हियर इन सऊदी अरेबिया नाउ एनी फीवर शुड बी ट्रीटेड एज कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज. That is there everywhere. तो इसीलिए हर फीवर को यहाँ पे जो है वो स्वाबिंग करते हैं, और जब रिजल्ट निगेटिव आ जाता है ओनली देन वी ट्रीट एज फ्लू और एनी अदर फ्लू. या आई थिंक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और मेडिकल मतलब हम लोग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट टू व्हाट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज. तो हम लोगों को द गाइडलाइंस जो है दे आर मेड फॉर ट्रीटिंग पीपल हु प्रेजेंट टू हॉस्पिटल्स एंड थिंग. उसमें तो वी हैव टू ट्रीट एवरीवन एज सस्पेक्टेड कोविड. लेकिन आई थिंक द क्वेश्चन जो सवाल है आई थिंक दैट रेफर्स टू कोई जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर घर पे कोई है एंड किसी को बुखार हो जाता है या नज़ला हो जाता है, तो इज देयर सम वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस? एंड आई थिंक द आंसर इज दैट एज हबीब भाई सेड के there is no way of differentiating common flu from covid. सिम्टम्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं कोविड में, लेकिन देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट. और क्योंकि 80% लोगों को बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब इवन कॉमन फ्लू से भी माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंशिएटिंग सिम्टम के जिसकी वजह जिससे आप ये कह सकें घर पे कि आपको यानी. तो इसलिए द रिकमेंडेशन है कि अगर आपको बुखार है या नज़ला है या आपको शुबा है कि आपको हो सकता है कोविड, तो यू ट्रीट योरसेल्फ एज कोविड पॉजिटिव अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए. एंड यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो आपके करीब हैं, घर में बुजुर्ग लोग हैं, बिकॉज़ दे आर हाईली वल्नरेबल पीपल. उसके खालिद एक चीज मैं ऐड कर दूं. जी खालिद जी. हेलो. हाँ फारूक प्लीज. एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यहाँ देखी, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, रियाद में, कि द पीपल उनको बुखार हो जाता है एंड दे आर ट्रीटिंग एज फ्लू, और वो उसको कहते नहीं हमें हाँ पहले भी होता रहता था. एंड सडनली व्हाट हैपेंस, even they develop shortness of breath and started desatting. Saturation comes below 80. Only then when they visit the hospital and they realize that this is something else. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉलिसी ये अडॉप्ट की थी कि all those people who are not who going frequently to hospital, we were providing pulse oximeter to those people. At least they should monitor during fever time. They should monitor their pulse oximetry. If it is okay, at least even if they have COVID, so there is no threat to their life. So this pulse oximetry should be a part of evaluation of and monitoring of fever. Nowadays, along with thermometer, we should keep pulse oximeter for monitoring. This is my suggestion
to Indian population who is residing nowadays in Saudi Arabia. So at least वो pulse oximeter से अपनी ऑक्सीजन देखते रहेंगे. If it is okay, even it is COVID, nothing need to worry. तो फारूक भैया कितने आराम से मिलता है पल्स ऑक्सीमीटर आप लोगों को वहाँ पे मार्केट में? ये 140 रियाल का है यहाँ पे. अब मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, इजिली अवेलेबल है सर. 140 रियाल का. इनफैक्ट हम लोगों ने अभी एक ग्रुप बना के करीब 100 पल्स ऑक्सीमीटर डिस्ट्रीब्यूट भी किए कैंप्स पे. तो वी आर गेटिंग दिस इज वन ऑफ द वे आई थिंक. नो दैट इज अ गुड थिंग. अगर आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर का एक्सेस है इस तरह से तो जी जी. यहाँ पे तो मार्केट से गायब हो गए. नहीं यहाँ मिल रहा है सर अभी. चलें, दैट्स गुड. चलें, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एस्मा और किसी को एस्मा है तो आर दे मोर वल्नरेबल या मोर लाइकली टू गेट एन इन्फेक्शन? आई थिंक Shamim is they are more likely to get tested. I don't know if Shamim is still here. Shamim, मालूम नहीं, लेकिन हबीब भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई asthma के patients के अंदर they are more in tune with their treatments, और pulse oximetry और peak flow meter and all these things they already have, and they are more sensitive to change of respiratory rates and things, so they are more likely to present earlier. लेकिन कोविड-19 के टाइम्स पे मैंने अब तक की सिर्फ एक पेशेंट देखा है जो कि प्रॉपर एस्मा का पेशेंट था, who was positive for COVID-19 out of nearly 300 patients or so. उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि एस्मेटिक पेशेंट को अगर डिजीज होती है तो ज्यादा सिवियर होती है, तो केयरफुल भी ज्यादा रहते हैं. मेरे ख्याल से बहुत केयरफुल रहते हैं. और फिर यहाँ पे तो आजकल इन लोगों को आइसोलेट कर रखा है ना. जी. अतर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ क्या एक्सपीरियंस है? जी, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट्स लगाना के बजाय वो आप ग्लासेस यूज करें. एक तो ये कि एक एक्स्ट्रा लेयर कवर हो जाता है, हमारा एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है उसके लिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड के ज्यादा चांसेस होते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, लेकिन अक्सर अमूमन ये देखा गया है जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं वो ज्यादातर टच करते हैं एक एवरेज पीपल से ज्यादा, एवरेज लोगों से ज्यादा. तो दे शुड स्विच ऑन ओवर टू द स्पेक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस. और अक्सर हमारे आजकल जैसे इरिटेशन होता है आंख में, बहुत जो ड्राई आईज होती हैं, तो दे कीप इचिंग ऑन देयर आईज. तो इसके लिए दे शुड कीप लुब्रिकेंट्स. वो अक्सर लुब्रिकेंट डालें क्योंकि ये सब चीज ज्यादा ड्राई आईज में होती है, मोस्टली इचिंग जो होती है और इरिटेशन होता है. तो अपने घरों में लुब्रिकेंट्स रखें, लुब्रिकेंट्स यूज करें. इस तरह से बिला वजह आंखों को टच ना करें और वो इचिंग ना करें. यही मेरी सलाह है लोगों को. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आई थिंक ये चीज बहुत कॉमनली दिमाग में आती नहीं है, इसके लिए आई थिंक लोगों को जरूर इससे फायदा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं वो सुन रहा था. अब्दुल मुबीन साहब ने पूछा है, व्हेन विल द पैंडेमिक एंड? Well, if you go according to politicians, it will end tomorrow. If you go as per the epidemiologist, it will last till next June. Okay, लेकिन practically speaking, I think जो पुरानी जो वो देखी है हम लोगों ने, 10 cycles of infection have to pass before infection comes to its baseline where it will sustain itself for a long time. तो 10 साइकिल्स ऑफ इन्फेक्शन को आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर लोगों के लिए. तो 10 साइकिल्स वो वैसे ही है जैसे कि जिस्म से दवा निकलते निकलते 10 टी-हाफ चाहिए उसके लिए ना, वैसे ही सिमिलर थिंग है. 1918 का फ्लू पैंडेमिक जो है, it took about 40 to 50 weeks to pass out, peter off. ठीक है, तो सिमिलर थिंग आप यहाँ लगा लीजिए. I think probably another couple of months before you see the settling of everything back to baseline. लेकिन फिर क्वेश्चन ये है एपिडेमियोलॉजिस्ट का कि फिर विंटर आ जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा. अब वो चीज है जो देखने वाली है. वी डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि पहली बार इंसानों ने इस वायरस के साथ जो है मुलाकात हुई है. जी, आई थिंक रेलेवेंस इसकी ये भी है कि पैंडेमिक हो सकता है कुछ जगहों पे कम हो जाए और कुछ जगहों पे जैसे
सऊदी अरेबिया में अब आजकल शायद अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं। हम लोग सबकी फैमिलीज इंडिया में है, दैट इज ऑलवेज ऑन आवर माइंड्स, और इंडिया में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ केसेस। तो आई थिंक सब जगह एक साथ ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जैसे अभी भाई ने कहा, कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता, क्योंकि इसमें वी हैव नो एक्सपीरियंस विद दिस वायरस। तो लेकिन लगता ये है कि एटलीस्ट कुछ महीने हो सकता है लगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियों में वैसे भी जो नॉर्मल फ्लू है वो भी होने लगता है, और इस वायरस का इन्फेक्टिविटी भी हो सकता है इंक्रीज हो जाए उस समय। तो बेसिकली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ड्रिंकिंग हॉट वाटर क्योर कोविड-19? अगर हॉट वाटर ड्रिंकिंग से अगर कोविड-19 खत्म हो रहा होता तो किसी भी केरला का बंदा जो है और फिलिपिनोज को हो नहीं सकता था फिर कोविड, क्योंकि फिलिपिनोज और केरला वाले लोग ज्यादातर गर्म पानी ही पीते हैं फुल टाइम। The answer is no. No evidence for that. शमीम कुछ कहना चाहे इसके बारे में, या फारूक कोई कमेंट? आई थिंक इसका बेसिस, जो क्वेश्चन का बेसिस ये है कि बहुत सारे मैसेजेस हम लोग सबने देखे हैं, वो मैसेजेस के कि ये वायरस जो है ऊपर गले में रहता है और गर्म पानी पिए तो सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो भाई अलीगढ़ वालों को क्यों लग रहा है ये बताओ? हम लोग तो चाय पीने वाले लोग हैं। तो आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम देयर, लेकिन द इजी आंसर इज के वायरस हाई टेम्परेचर्स पे मरता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो उतने टेम्परेचर का पानी कोई नहीं पीता है। और दूसरी चीज़, बॉडी में आपकी अगर ऑलरेडी वायरस है तो ऐसा नहीं है कि पानी पीने से वो ख़त्म हो जाएगा या ठंडे पानी पीने से बढ़ जाएगा। तो वायरस आपके सेल्स में होता है, पानी से मतलब आप उसको जला दें तो अलग बात है, लेकिन वो उतने टेम्परेचर्स हम लोग यूजुअली टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए पानी पीना इज डेफिनेटली नॉट अ क्योर, और प्रिवेंशन के लिए भी इट्स वेरी अनलाइकली टू वर्क। The other thing is कि ये वायरस होता है नाक, नेजोफैरिंक्स में, जो नाक के पीछे का हिस्सा है, मुंह के पीछे के हिस्से में नहीं होता है, और पानी आप कितना ही गर्म पी ले उस एरिया में नहीं जाएगा वो पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज टेम्परेचर स्क्रीनिंग इफेक्टिव टू डिटेक्ट द डिजीज? आई थिंक हम लोगों ने ये एड्रेस कर दिया है ऑलरेडी। टेम्परेचर इज अ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, कि मतलब जरूरी नहीं, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, तो सिर्फ टेम्परेचर से ये बता पाना कि कोविड-19 इन्फेक्शन है ये इम्पॉसिबल है। और लेकिन इससे ये इंडिकेशन मिल सकता है कि आपको कुछ बीमारी है। और क्योंकि आजकल जैसे अभी आई थिंक कंसेंसस ये था कि अगर किसी को बुखार है या कोई इलनेस है तो यू हैव टू अज्यूम कि ये कोविड-19 है, फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। आई थिंक टेम्परेचर अगर है किसी को, टेम्परेचर स्क्रीन कर रहे हैं, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपको बीमारी वाला हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि टेम्परेचर नहीं होना इज नॉट अ गारंटी कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। आपको हो सकता है आप इन्फेक्टिव हो, इन्फेक्शन हो और टेम्परेचर ना हो आपको। Any health hazard related to long time use of mask? शमीम, फारूक कोई? भाई ये कान का काम निकल जाता है, थोड़े दिनों में कान हम लोगों के सामने आ जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके अलावा ये कि मास्क ज्यादा देर लगाने से क्या होता है कि नेजल म्यूकोजा जो है वो ड्राई होने लगता है, एंड दैट कुड बी एन इशू वेरी सून। अगर बहुत दिनों तक ये मास्क चलते रहे तो ENT वालों का काम थोड़ा शायद बढ़ जाए साइनोसाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक थॉट है, there is no evidence to say that it is going to or not. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? शमीम, फारूक? एक चीज ऐड करना चाहूंगा सऊदी अरेबियन ऑडियंस के साथ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि किसी को भी अगर फीवर होता है तो डोंट हेसिटेट टू विजिट
तमन क्लिनिक और फीवर क्लिनिक्स। इसमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि वंस यू आर पॉजिटिव, then your whole treatment of COVID, even if you need a ventilator or anything, is free. And even private hospital, they will take you immediately. Suppose you are having fever and you are not going for testing, or आपकी oxygen saturation suddenly fall करने लगी, at that time you need ICU, then all the private hospitals will refuse, because the cost you are going to bear, the government will not help you in that regard unless you have COVID result. If you are COVID positive, all hospitals are open for you because the payment is given by government. So it is my suggestion, all the people who are listening to me, that if you are fever, don't hesitate, go first hand and go get yourself checked for COVID. Hopefully सबको फायदे की चीज होगी. Next question: Why is plasma therapy not yet adopted in Saudi Arabia? Farooq? Plasma therapy, yeah, yes, I think, in my opinion, in our ICU, we are using immunoglobulins very frequently along with the antiviral therapy. So the purpose is more or less, they are thinking the purpose is so we are unnecessarily going to expose the patient with the transfusion related hazards. Further, this is not sure that how the antibodies and how long the antibodies are going to persist in the plasma. So I think because they are frequently using immunoglobulin, they are avoiding this plasma therapy. शमीम, वहाँ पे इंडिया में यूज हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी? या वी आर अलीगढ़ में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन दिल्ली, गंगाराम, one of our Professor Chandra was admitted in Gangaram, so he received a plasma therapy. Right. I think हम लोग अभी हरीबल से बात हो रही थी मेरी कल या परसों. I think the evidence is very poor. एक ट्रायल हुआ था वुहान में शुरू में, जब वहाँ पे लोग ठीक होने लगे थे तो उनका प्लाज्मा लेके दूसरे लोगों में इंजेक्ट किया, और लेकिन उनके केसेस इतने कम हो गए कुछ दिनों में कंट्रोल की वजह से कि वो इतने ज़्यादा पेशेंट्स पे टेस्ट ही नहीं कर पाए. तो कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, कोई डेफिनेट जो भी कोई नई दवाई आती है या ट्रीटमेंट आता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसको ट्राई करके उसकी इफेक्टिवनेस चेक करी जाती है. तो प्लाज्मा थेरेपी की थियोरेटिकल एविडेंस तो है, मतलब थियोरेटिकल एक आइडिया है कि इससे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन उसको कभी भी इस वायरस के लिए, मतलब और चीज़ों में डेफिनेट एविडेंस है, लेकिन इस वायरस के लिए कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होता है. ये भी एविडेंस नहीं है कि कोई नुकसान होता है. तो कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं. आई थिंक बहुत लोकल वो है. एंड लाइक फारूक सेड, अगर कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो वही काम कर रहा है जो प्लाज्मा थेरेपी करेगी, तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Am I at risk for COVID-19 from mail, packages or products? कोई अभी भाई कोई क्या था सवाल? Am I at risk for COVID-19 from mail, packages or products? तो अगर ईमेल आए, पार्सल्स आए आपके पास, तो पार्सल भाई अगर जो लेकर आ रहा है पार्सल, जो पकड़े हुए पार्सल को, if he is infected, yes, you are at risk if you immediately touch that parcel. लेकिन जिसने भेजा है अगर वो इन्फेक्टेड था तो अनलाइकली है. तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल जो बना रखा है यहाँ हॉस्पिटल्स में भी, और जो एक कॉमन सेंस वाली चीज है वो ये कि ओपन द पार्सल द नेक्स्ट डे, लीव इट आउट इन द ओपन एंड ओपन द पार्सल द नेक्स्ट डे. तो ओपन वेल एरिएटेड एरिया में रख दीजिए उसको आप, जहाँ पे विंडो खुली हो, और अगले दिन खोल लीजिए उसको पार्सल को. अगर बहुत जरूरी है खोलना तो भाई आप उसको वाइप कर लीजिए क्लोरीन वाइप से या किसी चीज से, और फिर खोल लीजिए. ऐसे इट्स बेटर कि 24 घंटे वेट करके फिर उसके बाद खोल लीजिए. आई डोंट नो इंडिया और पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्सल अगर लेके आता है तो वो आपको डायरेक्टली हाथ में नहीं देता है, वो बाहर रख देते हैं दरवाजे के बाहर, और फिर पीछे हट जाते हैं और आप उठा के अपना रख लें. आई डोंट नो इंडिया और सऊदी अरेबिया में कुछ और सिस्टम है या नहीं है, लेकिन जैसे अभी भाई ने कहा, आई थिंक इट बेस्ट, अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें एक दिन के लिए, और नहीं वेट कर सकते तो फिर उसको किसी अल्कोहल वाइप से वाइप कर लें. सऊदी अरेबिया में बड़ा आसान है क्योंकि वहां पे किसी का पार्सल अपने पास नहीं आता,
सबका पार्सल जो है ना वो पोस्ट ऑफिस में या तो आता है अगर आपने पोस्ट बॉक्स ले रखा है, वरना आपकी कंपनी में आता है, तो वैसे ही आपको 2 दिन बाद मिलता है वो। वेरी ट्रू सर। काशिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं कहूँ सर, वेरी ट्रू सर। हबीब साहब जो कह रहे थे ना, पार्सल लेने जाना पड़ता है, बोला मैं, इट्स वेरी ट्रू सर, वी हैव टू गो। एक क्वेश्चन है जो आई थिंक इट्स अ फॉलो अप टू फारूक सजेशन के अगर बुखार हो तो हॉस्पिटल चले जाएं, कि इज सोर थ्रोट इनफ टू विजिट द हॉस्पिटल फॉर चेकअप ऑफ कोविड-19? तो अगर किसी को सिर्फ सोर थ्रोट है, टेम्परेचर नहीं है, व्हाट डू यू रेकमेंड फारूक? हमारी एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया में सोर थ्रोट को वी आर गिविंग 1 पॉइंट, और एनी पेशेंट फ्रॉम एंडेमिक एरिया लाइक रियाद, so Riyadh is, if someone is from Riyadh, it will score 4, so he had to go for swabbing. But if he is from other than Riyadh and Jeddah, other places like Jizan, Najran, so they are not in endemic, considered as endemic areas, so the score will be 1. So only sore throat in Jizan and Najran, they don't need swabbing, but in Riyadh and Jeddah they need swabbing. हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ सोर नहीं थ्रोट नहीं, just they can go in, there is fever clinic, the Taman clinic, or they can go through the drive through after taking appointment, and they will do, and the result will come on their mobile. I hope that answers the question. किसी ने पूछा है what are suggested lubricants? मैंने लिख दिया है। ये वो है कि मास्क पहनने की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, या I'm assuming कि ये this refers to that. So I don't think there's any आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए होता है, आर्टिफिशियल टीयर्स यू कैन यूज। अच्छा, ओके। हाँ, वैसे अतर साहब अच्छा बताएंगे। टीयर्स नेचुरल हमारे टाइम में मिलते थे सऊदी अरेबिया में, जी, still we are 4-5 getting, रियाल का होता था एक। yes, you are right sir, still we are getting tear natural, many lubricants are here, Optifresh. ऑप्टिफ्रेश, बिल्कुल। ओके, कोई एक दो नाम जो आसानी से मिल जाते हैं उधर साहब, जो लोग अगर खुद खरीदना चाहें तो जाके ले सकते हैं दुकान से? They can get from the hospital. Hospitals are open for everybody ओके in Saudi Arabia. जी। Optifresh है, जी you लेकिन can इस buy तरह op- जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, या वो ऐसे नॉर्मल फार्मेसीज में भी मिलते हैं वहाँ पे सऊदी में? जी, या- जी, ओवर द yes, काउंटर it's है। available. जी, available. Everywhere it is available. Okay. Very common medicine. और कोई स्पेशल वो चीजें जो रेकमेंड करें आप, या कोई भी ले सकते, कोई भी टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स दे दें? नहीं, artificial tear just to moist your eyes, जी which can lubricate your eyes. That's all. जी, कोई स्पेसिफिक ब्रांड की जरूरत नहीं है, कोई जो अवेलेबल हो वो ले लें। Lubricants कहते हैं, lubricants, जी। eye lubricants. चलिए, एक ये टेक्निकल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। हाउ इज प्लाज्मा थेरेपी डिफरेंट फ्रॉम अ वैक्सीन? आई थिंक वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। सो वैक्सीन, बोले For treatment. Plasma therapy is for treatment. Vaccine is for prevention. In plasma I think therapy, you you already have antibodies. This concept of active and passive immunization. हाँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते फारूक, यू कैन एक्सप्लेन के डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो So उनमें if डिफरेंस we are going to give plasma, it means कि antibodies COVID के against बनी हुई हैं, and immediately we are giving ready-made antibodies to the patient to fight the virus. But in vaccine, we are giving antigen, and the body generates antibodies against it. So it will take time. So plasma therapy is a sort of passive way to get immediate antibodies into the body. तो जैसे फारूक ने कहा, बेसिकली द बेसिक डिफरेंस इज, जब बॉडी हमारी कोई इन्फेक्शन को फाइट करती है तो अपनी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उसको अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है तो या तो हम अपनी बॉडी को फोर्स कर सकते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो हम वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट करें और उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, या हम डायरेक्टली उन एंटीबॉडीज को किसी की बॉडी में अगर वो हो तो उसकी बॉडी उससे लेके उसका प्लाज्मा लेके हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लें तो वो हमारे अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडीज आ जाएंगी। तो ये डिफरेंस बेसिकली। Health Minister of Delhi has been reported to be cured by plasma therapy. अमीर आदमी है भाई। तो नहीं, जैसे आप लोगों ने अभी डिस्कस किया, प्लाज्मा थेरेपी की एविडेंस नहीं है अभी तक कोई
जिन लोगों को इन्फेक्शन होगा वो लोग भी, उनमें से भी ऑलमोस्ट 90-95% लोग जो हैं वो बिल्कुल सिम्टोमेटिक, सिर्फ बुखार का इलाज करें अगर तो भी ठीक हो जाएंगे। मतलब कुछ भी ना लें, सिर्फ बुखार की दवाई लें तो भी 90-95% लोग जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन होगा वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो इसमें अब ये कहना कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से ठीक हुए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी मिली हो, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, ये इट इज इम्पॉसिबल टू से। तो प्लाज्मा थेरेपी का एविडेंस मैं आपको एक छोटी सी चीज से बता सकता हूँ। जो यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है उसका जो इनिशियल जो वो आया है रिपोर्ट, उसके हिसाब से वेंटिलेटेड पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटल स्टे उन पेशेंट्स का 2 दिन से कम हुआ है, और ये वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं, रियली सिक पेशेंट्स। तो ये दिस ट्रीटमेंट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके साथ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इट इज अ ब्लड प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे, आपको इन्फेक्शन भी लग सकता है। तो इट हैज टू बी टेकन विद अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। जैसे फारूक मियां ने पहले कहा ना कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग बॉडी प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स। एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है प्रीवियस क्वेश्चन का, कि अगर कोई एस्थमेटिक है एंड दे हैव प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सो हाउ कैन दे डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कोविड-19? तो वो कैसे पता चलेगा कि एस्थमा है या कोविड-19? Fever. If fever is there, they have to go to the nearest place to seek help. Other than fever, treat it like asthma. Okay. If it is not responding, again you have to seek medical help. Yeah, I hope that answers the question. So basically, अगर वो एस्थमा की तरह लग रहा है आपको फील, क्योंकि एस्थमेटिक को पता होता है कि एस्थमा क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि एस्थमा है तो ट्रीट इट एज एस्थमा। अगर वो इम्प्रूव नहीं होता तो यू गो टू द हॉस्पिटल। चाइल्ड में एस्थमा है तो जी कौन सा चाइल्ड में अगर एस्थमा है, किसी बच्चे में एस्थमा है तो वो कैसे डिफरेंशिएट? फीवर, देखिए एस्थमा के अंदर सांस फूलती है जी। बुखार जब होता है इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है अब, ठीक है। तो अगर किसी को बुखार हो रहा है तो डेफिनेटली जाके मेडिकल हेल्प ले। एस्थमा के ट्रीटमेंट उनके पास मौजूद होते हैं, अपने ट्रीटमेंट ले। इससे नहीं इंप्रूव कर रहा है तब भी उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, जो नेबुलाइजर लेते हैं सर उससे इफेक्ट? हाँ, तो उसके लिए और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं नेबुलाइजर के बियॉन्ड। जी जी, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपको। तो अगर जो आपका रेगुलर घर का ट्रीटमेंट है वो नहीं ठीक कर रहा है तो आपको जाना है हॉस्पिटल। लेकिन अगर फीवर है तो आपको फौरन जाना है, यू हैव टू गो एट द अर्लीस्ट। एक शदाबुद्दीन साहब ने पूछा है सवाल कि there are 2 studies, one suggests that there is a vulnerable group and मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 स्टडी आई थी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक उन दोनों स्टडी में एक स्टडी में ये कहा गया था, फ्रेंच स्टडी में, कि स्मोकर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव हैं अगेंस्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगर दोज हु आर स्मोकर्स। और बाकी दूसरी ज्यादातर स्टडी में ये आया कि स्मोकर आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। तो इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? इवन कि निकोटीन पैचेस का इस्तेमाल भी हुआ था उस स्टडी में, जो फ्रेंच में जो स्टडी हुई थी जी एज ए ट्रायल। तो शादाब साहब, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे अल्कोहल के साथ है वैसे ही स्मोकिंग के साथ है। अगर लंग्स ऑलरेडी डैमेज हैं आपकी तो यू आर मोर एट रिस्क। और वो फ्रेंच स्टडी के अंदर जो वो कह रहे हैं ना, ये यूरोप वाइड चीज है कि अगर कोई भी स्मोकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको पैच लगा देते हैं, क्योंकि ही इज नॉट अलाउड टू स्मोक इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, प्लस ऑक्सीजन भी होती है। तो इस वजह से वो पैच से आप वो ना हो, बेले ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर लंग डैमेज है तो यू आर मोर एट रिस्क। अगर लंग डैमेज नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं कोविड-19 का इन्फेक्शन उन लोगों तक कम पहुंच पाएगा जो कि ऑलरेडी स्मोकिंग पे जोन पे हैं या स्मोकर्स हैं, क्योंकि somehow they are something some kind of resistance develop in the lung because of smoking or something like that.
ऐसी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई बात और अनलेस एंड अनटिल रॉथमैन्स या जो बड़ी बड़ी कंपनी है टोबैको वाली, उन्होंने वो स्टडी करवाई हो। ये सही है। I think शादाब साहब, जो I think the bottom line is कि जो मतलब शुरू में कंफ्यूजन ये हुआ था कि कुछ जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको एक उनकी सोशल हिस्ट्री ली जाती है, जी तो जी उसमें ये देखा गया कि स्मोकर्स हैं वो उनकी नंबर्स कम थे उनके, तो Dr. Shadab is physiotherapist here in जी। Jizan. He's a physiotherapist. ओके जी, तो इसलिए आई थिंक द कंफ्यूजन जो था वो जनरली स्पीकिंग स्मोकर्स को कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, जी जी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं लंग के वो डैमेज हो जाते हैं। तो आपको नॉर्मल सिर्फ ये वाला कोविड-19 नहीं, बाकी और भी कोई भी इन्फेक्शन जो है लंग का वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स को। और प्लस अगर स्मोकिंग की वजह से लंग डैमेज है ऑलरेडी तो फिर बहुत सीरियस इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है। तो इसलिए उस स्टडी में जब वो आई थी यहाँ पे तो काफ़ी उसका चर्चा था, लेकिन उस नीचे हमेशा डिस्क्लेमर ये लिखा जाता था कि अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आप शुरू ना कर दें उसके चक्कर में। Thank you very much. By the way, I just wanted to clear, I'm not promoting here is any kind of smoking or something like that. It's just a question. जी जी बिल्कुल That's नहीं, fine. थैंक यू फॉर आस्किंग। Will we get a certificate for this session? Yes, inshallah. काशिफ साहब करेंगे भाई, Inshallah, inshallah, हम करें। inshallah. अच्छा, एक क्वेश्चन है, कैन कोविड-19 बी क्योर्ड एट होम विद द हेल्प ऑफ Stadium. सेल्फ क्वारंटीन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट अ क्रॉनिक स्टेज? भाई इसमें डॉक्टर और एक नर्स ऐड कर दीजिए तो इंशाल्लाह। आई थिंक जैसे अभी तक ये आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है पहले कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ इलाज करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम का, तो इट्स बेस्ट कि यू गो टू हॉस्पिटल। एंड एज फारूक मेंशन के सऊदी में जो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं सबके लिए, और जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें मुझे बहुत पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोगों को शायद बेहतर समझ में आएगी कि जितना अर्ली आप चले जाएं वो आप ही के लिए बेहतर है कि आप जितना अर्ली सिस्टम में आ जाएं। आई थिंक दैट्स द क्रक्स। फारूक, यही जी जी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की डेथ हुई है अभी उसमें यही आई कि उन लोगों के पास कोविड का रिजल्ट नहीं था, तो वो वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल दे वर रनिंग फॉर एडमिशन, और उनको जगह नहीं मिली वहां पे। लेकिन अगर उनके पास कोविड का रिजल्ट रहता है, इफ दे आर कोविड पॉजिटिव, तो इमीडिएटली उनको प्रिवन प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक हम्मादी एंड सुलेमान हबीब दे आर टेकिंग दीस पेशेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट उनके एक्सपेंसेस बियर करती है। और अगर उनके पास कोविड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता तो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, इसका मसला आता है उनके साथ। तो इसलिए हॉस्पिटल रिलेक्टेंट होते हैं उनको लेने के लिए, एंड दे विल डाइवर्ट देम कि हमारे पास बेड नहीं है, गो टू अदर हॉस्पिटल, एंड द पेशेंट आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो मुझे अभी एक और ख्याल आया कि क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी जिक्र है इस क्वेश्चन में, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन माइट बी फ्रॉम इंडिया रादर देन सऊदी। एग्जैक्टली। तो शमीम, इसके बारे में व्हाट डू यू रेकमेंड कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो क्या करना चाहिए उनको? शमीम भाई देखिए, अभी तो ये गाइडलाइन आ गई है कि इफ यू आर कोविड पॉजिटिव then you should not be managed at the home. You should move to L1 center depending upon your severity. Mild symptoms, asymptomatic COVID positive, go to L1. Moderate hospital, and severe cases ICU critical care. तो सिलेंडर का घर में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए। I think there is sudden drop in the saturation and it cannot be met at home. आई थिंक सवाल ये काफी लोगों ने, मतलब इस आज के अलावा भी इससे पहले भी पर्सनली पूछते हैं हम लोगों से, आप लोगों से भी सबसे पूछा होगा ये। आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि इंडिया में लोग जो हैं एक ये डिजीज जो है एक स्टिग्मा बन गई है और लोग जो हैं घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से। तो लोग चाहते हैं कि जितना अवॉइड करा जाए हॉस्पिटल्स को, अनफॉर्चुनेटली उतना बेहतर है। तो आई थिंक I face this problem. आप लोग मालूम नहीं हो, शमीम को खुद हाँ पता है।
खुद इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन ये इब्राहिम अहमद साहब ने एक सवाल पूछा है ये, तो आई थिंक इब्राहिम साहब द आंसर इज के जैसे शमीम ने बताया कि घर पे इलाज करने में रिस्क ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बहुत सडनली आपको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर आपको इतना मौका भी ना मिले शायद कि हॉस्पिटल जाने का। तो घर में ऑक्सीजन ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। लेकिन एक चीज ऐड करेंगे खालिद, यहाँ पे कुछ पेशेंट जैसे जो लोग यहाँ पे रियाद में कैंप्स में रह रहे हैं ना, बाहर यानी पेरीफेरी में, और कैंप से हॉस्पिटल का डिस्टेंस इज अराउंड 200 किलोमीटर। अब मान लीजिए एम्बुलेंस जा रही है यहाँ से उनको पिक करने के लिए, इज गोइंग अराउंड 200 किलोमीटर्स टू पिक देम एंड 200 किलोmeters बैक, so it is around 400 kilometers. So if they have oxygen cylinder while they are getting transport from camp to hospital, on the way they can use it. लेकिन वहां पे फिर नर्सिंग स्टाफ भी होता है ना, क्लिनिक होता है ना, नर्स लेड क्लिनिक होता है वहां पे। हाँ, ये कैंप्स वो में तो वहां पे मेडिकल हेल्प है उनके पास वो, हाँ, वो एटलीस्ट अलग चीज उनको है। जो है एक असिस्टेड हेल्प मिल जाती है, तो बिल्कुल वो सिलेंडर लगा के उनको ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम केसेस आर सिम्टमलेस, सिम्टम्स नहीं है तो हाउ डू यू डिटेक्ट कोविड-19? So there is no way to detect COVID-19. तो अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये पता लगाना, अनलेस टेस्ट करे कोई, टेस्ट में तो आ जाएगा लेकिन टेस्ट कराए बिना कोई तरीका नहीं है उसको पता करने का। तो यहाँ पे खालिद एक चीज और बता दें कि इन द इवेंट घर में या आपके जानने वालों में जिनसे आपको एक्सपोजर हुआ है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग होगी यहाँ पे, अदर देन दैट नो। Yeah, I hope that answers the question. तो बेसिकली अगर आप रिस्क पे हैं इन्फेक्शन, आपको ये अज्यूम करा जा सकता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ होगा कहीं किसी कॉन्टैक्ट से, तब टेस्टिंग करके आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इसीलिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स और इन्फेक्टिव हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग प्रिकॉशंस लें। जिनको सिम्टम्स नहीं है वो भी प्रिकॉशंस लें, वो भी मास्क पहने। वो मास्क का रिकमेंडेशन है, वो इसी वजह से। चाय के जिक्र ने प्रूव कर दिया कि मीटिंग अलीगढ़ वालों की थी। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। चले, एक लास्ट सवाल ये है कि हाउ कैन एन एक्सरे ऑफ योर चेस्ट हेल्प डिटेक्ट कोविड-19? X-ray test in early disease is not helpful. Rather, CT thorax is more helpful than X-ray test. मेहताब साहब बताएंगे और डिटेल। नहीं साहब, बात सर बिल्कुल सही है कि अगर उसमें लीजन पिक करना है या आइडेंटिफाई करना है डिजीज, तब तो सीटी का ही रोल है। लेकिन एक्सरे फिर भी कराया जाता है क्योंकि आपको ये चेक करना है कि पेशेंट कितना वर्सन हुआ या उसमें प्रोग्रेस कितने हुए डिजीज की, तो ऐसे में एक्सरे करा सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना है तो सीटी करना पड़ेगा। थैंक यू। मेहताब रेडियोलॉजिस्ट हैं, ऑब्वियसली ये देखते रहते हैं इस तरह के पेशेंट्स एंड द एक्सपर्ट ऑन दिस। लेकिन मेहताब मैं ये पूछना था, अगर आई थिंक द क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि डिटेक्ट करने के लिए तो कोई ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टेस्ट कराने के लिए आप एक्सरे कराएं उसको? नहीं, जाहिर है उसके लिए तो थ्रोट स्वैब ही होगा। उसको कोई डायग्नोस्टिक टूल तो के तौर पर यूज करना इतना सेंसिटिव नहीं है। एक्सरे टेस्ट जो है वो इज नॉट दैट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक कि उसको यूज किया जाए एज ए डायग्नोस्टिक मोडालिटी। तो उसका तो क्लिनिकल मैनेजमेंट में ही रोल है। अगर पेशेंट, हमें पता है पहले से कि किसी पेशेंट को कोविड है और वो पेशेंट जो है उसकी क्लिनिकल आपको चेक करना है कि कितना इम्प्रूव हो रहा है, इन दैट केस वी कैन यूज एक्सरे टेस्ट। मेहताब, उसमें बस ये एक चीज और साथ में जो तुम रिपोर्ट करते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, वो ये कि और चीजों को ज्यादा देखते हैं कि भाई कुछ और तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। जी जी सर, जैसे निमोनिया है या कुछ इस तरह का। बिल्कुल ऑल्टरनेटिव क्लिनिकली। I think everyone needs to realize कि एक्सरेज जो है बहुत हार्मफुल चीज होती है, तो एक्सरेज जब तक अवॉइड करे जा सके वो करना चाहिए। मेरे मेहनत की रोजी पे
लात मार रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक आप बच सकें एक्सरे से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक क्वेश्चंस तो इतने ही थे। आप किसी और के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वर्बली पूछ, यहाँ पे अगर पूछना चाहे कोई तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मजा आया। आपके पास कोई और Thank you, everybody. कोई मैसेजेस आए हो? नहीं सर, ये ऑलमोस्ट सेम ही आए थे, मतलब जो रिलेटेड है तो सब कवर हो ही गया है वो सब क्वेश्चन। Very informative and engaging. Yeah, really a very informative, and I on behalf of your administration thanks to one and all.